सभासदों, माननीय उपसभापति जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। Papers to be laid on the table. Let me dispose of this. Let me dispose of this. Yes, let me dispose of this. Let me dispose of. Papers to be laid on the table. Sri Narendra Singh Tomar. श्री नरेंद्र सिंह तोमर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यवली की क्रम संख्या 1 पर मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री बंकर दत्तात्रेय जी के नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को फॉर्मल बिजनेस के बाद श्री धर्मेंद्र प्रधान। महोदय, आज की कार्य की संशोधित सूची में आपकी अनुमति से मैं क्रमांक नंबर संख्या 2 पर अपने नाम के सामने उल्लेखित कागजात सदन की पटल पर रखना चाहता हूं। श्रीमती निर्मला सीतारामन। Sir, with your permission, I wish to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 3 in the revised list of business for today. Dr. Mahesh Sharma. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Shri Kiran Rijiju. Permission, I rise to lay on the table of the House the papers listed against my name at serial number 5 in today's revised list. Shri Babul Supriyo. Sir, with your kind permission, I rise to lay papers on the table listed against my name at Roman 2 in today's revised list of business. Announcement by the Chair. Honourable members, I have to inform that a letter has been received from Shri MP Virendra Kumar, member stating that he is unable to attend the sittings of Rajya Sabha on health grounds. He has therefore requested for grant of leave of absence from 31st January to 12th April 2017 during the current session of the Rajya Sabha. Does he have the permission of the House for remaining absent from 31st January to 12th April 2017 during the current session of the Rajya Sabha? I hope the House agree. Now permission to remain absent is granted. Another announcement, I have also to inform the members that a letter has been received from Sri Dilip Kumar Tikki, member stating that he is unable to attend the sittings of the Rajya Sabha on health grounds. He has therefore requested for a grant of leave or absence from 31st January to 12th April 2017 during the current session of the Rajya Sabha. Does he have the permission of the House for remaining absent from 31st January to 12th April 2017 during the current session of the Rajya Sabha? I hope the House agree. Permission to remain absent is granted. Statement by Minister Sri Haribhai Parthibai Chowdhury. Sir, with your kind permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of recommendation of 278 report of the Parliamentary Standing Committee on Industry pertaining to Ministry of MSME. Now motion for election to the Spices Board. Srimati Nirmala Sitharaman to move. 1 minute, sir. So sorry, 1 minute, sir. Will you give me a minute to let me? No, you, oh, yeah. Yes. Sir. Yeah, I have it. So sorry about this. No problem. Sir, this is a motion for the election to the Spices Board. So you move it. That I wish to move it, sir. Do you want me to give the details? And No need. Just to move the motion. You say I Thank you move the very much. motion. Okay. Motion moved. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Motion is adopted. If all of you और उपचुनाव अटेर में जब ईवीएम मशीन का राज्य चुनाव आयुक्त के सामने उसको टेस्ट किया गया तो उसमें जो बटन दबाते थे उसमें भाजपा का कमल का निशान आता था। ये मशीन गोविंदनगर उत्तर प्रदेश की गोविंदनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की थी जिसमें कि सत्यदेव पचौरी का नाम था। हमारी हमेशा शिकायत रही है कि ईवीएम मशीन में ये तो स्पष्ट प्रमाण है, ये स्पष्ट प्रमाण है कि इसके अंदर भारी घपला हुआ है और एक अविश्वास पैदा
हो गया है जनमानस के बीच में कि ईवीएम मशीन में गलत क्यों हो सकती है। ऐसी व्यवस्था के लिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि उपसभापति महोदय, But, हमारी आपसे प्रार्थना पहले भी रही है कि ईवीएम मशीन के बारे में कि इसमें छेड़छाड़ हो सकती है, इसलिए बैलेट पेपर के ही माध्यम से चुनाव कराया जाए और श्री दिग्विजय सिंह जी, श्री मेरे पास और भी बहुत श्री दिग्विजय सिंह जी, सर, if you allow me to start a debate, इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट आपको मिलेगा, ये गलत है to prove सर भिंड के में जो हुआ उसकी पूरी न्यूज इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन ने साफ किया है कि कोई गड़बड़ी नहीं है। वहां जिस पार्टी का बटन दबाया उसका ही वोट स्लिप आया है, तो कोई घोटाला नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। और इसलिए इसका आपको अगर जाना है तो इलेक्शन कमीशन चाहिए। सदन का समय मत बर्बाद कीजिए, आप चुनाव आयोग में जाइए, पूछिए और आपको सारा रिकॉर्ड मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग है सर, वीडियो रिकॉर्डिंग है, राघोपाल जी, वीडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। और इस रिकॉर्डिंग के सहारे आप इसी में जाइए, लेकिन आप सदन का समय मत खराब करिए। चिप लगती हैं, इनमें प्रोग्रामिंग की जाती है और ये डेलिबरेटली प्रोग्रामिंग की गई ऐसी, ये तो खुल गया इसमें अटेर के उपचुनाव में, वरना हर एक मशीन में 100 वोट, 50 वोट, 150 वोट पड़ने के बाद ये प्रोग्रामिंग की गई है कि निशान कहीं भी, बटन कहीं भी दबा जाए वो कमल पर वोट चला जाएगा। चिप और चिप का ठेका भी किस पे है ये बताने की कृपा करें। जो चिप बनाई जा रही है उसका कॉन्ट्रैक्ट किस पर है, उसका कॉन्ट्रैक्ट किस पर है, ये बहुत गंभीर मामला है। सारे हिंदुस्तान की चिप्स को, प्रोग्रामिंग को देखने के लिए अलग से एक मॉनिटरिंग सेल बनवाई जाए, संसद के सभापति जी। ईवीएम में गड़बड़ी का मामला पहले भी माननीय सदन में उठ चुका है। उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा के आम चुनाव होकर हटे हैं। उत्तर प्रदेश में ईवीएम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है और इस मामले को लेकर हमारी पार्टी अदालत में भी जा रही है, लेकिन और चली गई है अदालत में। माननीय सभापति जी, अभी मध्य प्रदेश तो यूपी से लगा है और मध्य प्रदेश में जो कुछ सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है, तो वहां पर ईवीएम में तो जब उसको चेक कराया गया तो वहां पर जो आजाद उम्मीदवार था इंडिपेंडेंट, बटन उसके सामने दबाया जा रहा है और कमल के ऊपर जो है तो वो बटन जा रहा है, तो जो चिन्ह जो है। तो माननीय उपसभापति जी, मेरा ये कहना है कि ईवीएम के जरिए पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। से आए हैं और सच्चा बताने के लिए आए हैं। आपको शिकायत है तो आप चुनाव आयोग के पास जाइए। सदन का समय मत बर्बाद करिए, सदन का समय मत बर्बाद करिए। आप बैलेट पेपर से कराएं, आप बैलेट पेपर से क्यों कराते हैं? आप बेईमान हैं। हम लोगों ने हार की हताशा से आप शब्दों का संतुलन बिगड़ जाएगी। अच्छा प्लीज, हार की हताशा, नकवी की हताशा से I have called Mr. Naqvi. Mayawati ji, Naqvi, please listen to Mr. Naqvi. Yes, he has already stood up, Naqvi. I will listen to you also. I will also. राघोपाल जी बोला, नकवी के बाद आपने नोटिस दिया है, 267 नोटिस दिया है सर नोटिस आओ क्या बोलो सर। इन्होंने मायावती जी ने जनता को बेईमान कहा है, मायावती जी ने जनता को बेईमान कहा है। तत्काल इसको स्पष्ट किया जाए। शी सेड पब्लिक
are dishonest. People are dishonest. This is the, ये जो है वो देश के लोगों का अपमान है, देश के लोकतंत्र का अपमान है, और हार की हताशा में देश के लोकतंत्र का अपमान हो, ये अनएक्सेप्टेबल है। ये अनएक्सेप्टेबल है। That will be explained. Please explain it. Now, yeah. I'll call it. I'll call it. Wait. Now see, now listen. Now please. Okay. Now expunge. Expunge हो गया. Yes, expunge. Expunge हो गया. Expunge हो गया. Expunge हो गया. अच्छा now. इसलिए उनमें अभी हताशा और निराशा है, बोखलाहट है। जनता ने इन बेईमानों को हरा दिया है। Now please. मायावती जी please. मायावती जी प्लीज बैठो मायावती जी बैठिए मिश्रा जी अभी see honorable members, I have received four 267 notices on this subject under discussion, which I have not permitted actually. The 267 notices are from Sri Naresh Agarwal, Sri Digvijay Singh, Sri Pramod Tiwari, and Sri Professor Ram Gopal Yadav. Now, but all these are under, no, this different subject. All these are under 267 notice. And I am informing that I am not allowing discussion under 267. No, please. सुनिए आप सुनिए no I will call him no I am see let me complete no I see no I will let me come सुनिए बेटा अरे शुक्ला जी बैठिए अच्छा now so see what I said, what was about to say, which was objected perhaps by you, is that I am not allowing discussion under 267. That is what I said. But however, for those who gave notice, Digvijay Singh allowed, Naresh ji, Ram Gopal ji allowed. I am ready to allow Mr. Naresh Agarwal also, and Sri Pramod Tiwari also, if he is present. No. To make that point, but further, आपने दिया है, oh, now दूसरा subject, I will come to that. No, please, अरे नरेश, मिश्रा जी बैठिए, let me deal with this. No, मिश्रा जी बैठिए no yeah but when I am looking he is sitting when I am looking there he is sitting what can I do see when देखा बैठिए मिश्रा जी सुनिए I am only let me complete I am only saying that 267 I am not allowing because first of all it is to be agitated before the election commission have any complaint. That is one thing. However, if you want discussion, there are other ways. I have no objection. If there are other ways, 267 I am not allowing. But see, because Naresh ji given notice and Pramod Tiwari also have given notice, I can allow them 1 minute each. Yes, Naresh. 1 minute. No. सर ये ईवीएम के मामले में मंत्री को क्या राइट है? I am not allowing 267. मंत्री को क्या राइट है? I told him after that I will call you. ये ईवीएम की सरकार है, ईवीएम के मंत्री ये क्यों बोलते हैं? या माननीय सभापति जी, हमारे सम्मानित साथियों ने काफी तथ्यों को सामने लाया। मुझे दुख है कि संसदीय भाषा में काने को काना ही कहा जाएगा, बेईमान को बेईमानी कहा जाएगा और कोई भाषा और नहीं है संसदीय में, क्योंकि वो बेईमान बने तो संसदीय भाषा में नो इसके बारे में आओ श्रीमन मैं तुम्हारे कह रहा हूँ आपके नोटिस के बारे में बोलो कह रहा हूँ
कि इसमें जो चिप लगाई जाती है, वो चिप की प्रोग्रामिंग बेंगलोर के इंजीनियर और तमाम देश के इंजीनियरों ने चिप की जो प्रोग्रामिंग करी है और उसको दिखाया है, उसमें बड़ा साफ है कि चिप में अगर प्रोग्रामिंग हो जाएगी तो बीजेपी But the election commission has denied it. और You know that the election commission has clarified that it is not possible. लेकिन हो गया, Election commission has clarified. अनुमति नहीं दी है तो फिर कौन सा नियम में इसको बोलने का अवसर दिया जा रहा है? ये उचित नहीं है सभापति महोदय, ये उचित नहीं है। 267 आपने डिसअलाउ किया तो फिर अनुमति की बात की है साहब। देश के बहुत बड़े हाउस के स्पीकर के बेटे को दिया गया है, स्पीकर के बेटे को दिया गया है, देश के एक बहुत बड़े सदन के स्पीकर को, LOP, भाजपा से जुड़े हुए। LOP. तो इस कारण ये बेईमानी हो रही है और I got your point. But 267 I am not permitting. माननीय अरे मंत्री जी फील्डिंग के लिए एमपीज को छोड़ा करिए, आप क्यों बीच में पड़ते हैं? माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, सर हमारे लोकतंत्र की जो फाउंडेशन जिस पर पूरे हमारे लोकतंत्र खड़ा है वो हमारे इलेक्शन, और इलेक्शन के आधार पर ही स्वतंत्र इलेक्शन हो, लोगों का विश्वास हो और इलेक्शन साफ सुथरे हो, उस पर आशंका। सर हमारे यहां बहुत दफा इलेक्शन कमीशन और सरकार ने किस तरह से इलेक्शन डेमोक्रेटिक तरीके से हो और पूरे भारत की जनता पर उस पर विश्वास हो, कई दफा संशोधन किया गया। ये पहली दफा हमारे देश में ईवीएम मशीन शक के घेरे में आ गए, और एक दफा नहीं कई दफा इसी पिछले 3-4 साल। सर मैं यहां मिसाल दी जाती है कि 5 इलेक्शन हुए तो यूपी पर क्यों शक है? सर अगर पूरे अगर जो चोरी करता है तो इस तरह से चोरी करता है कि किसी को पता न लगे। अगर पांच इलेक्शन में वो कर देते तो चोरी बाहर आई, लेकिन उन्होंने सबसे बड़े स्टेट का में चोरी कर दी ताकि किसी को इसलिए ये ईवीएम मशीन का सिलसिला खत्म होना चाहिए और आने वाले इलेक्शन में जो हमारे ये बाई इलेक्शन जो चल रहे हैं, इन बाई इलेक्शनों में भी ये ईवीएम खत्म होना चाहिए और गुजरात और हिमाचल में कोई ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये मेरा That's all. Naqvi ji. 22 मार्च को इसी सदन में इसी मुद्दे पर लगभग 4 घंटे चर्चा हुई है। 22 मार्च को इसी मुद्दे पर 4 घंटे चर्चा हुई। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कोई भी तर्क और कोई भी तथ्य ये पूरी की पूरी चर्चा में ईवीएम मशीन हमारे देश की चुनाव व्यवस्था पर कोई नहीं दे पाया। एक चीज, दूसरी चीज ये कि ये सवाल सरकार पर नहीं है, ये सवाल जनता पर है, ये सवाल चुनाव आयोग पर खड़ा किया जा रहा है और इसलिए किया जा रहा है कि ये चुनाव पहली बार नहीं हो रहा है। 2004 में भी ईवीएम से हुआ, 2009 में भी ईवीएम से हुआ, पंजाब में भी ईवीएम से हुआ, बंगाल में भी ईवीएम से हुआ, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीती तब भी ईवीएम से हुआ, जब बसपा जीती तब भी ईवीएम से हुआ, बिहार में जब हुआ तब भी ईवीएम से हुआ, दिल्ली में जब हुआ तो भी ईवीएम से हुआ। 2 लोकसभा चुनाव ये ईवीएम से जीतेंगे, राज्यों के विधानसभा चुनाव ये ईवीएम से जीतेंगे, तब ईवीएम सब बहुत अच्छी। मेरा केवल एक शब्द कहना है कि जहां पर जीत का ग्लैमर होता है वहीं हार का ग्रेस होना चाहिए। जीत के ग्लैमर के साथ साथ हार का ग्रेस होना चाहिए। अगर हार का ग्रेस इनमें नहीं है और हार की हताशा में मानसिक संतुलन कोई खो बैठा है, तो इसका इलाज हम नहीं कर सकते। You may take it up with the election commission. Now I am going to 0 hour. Dr. Subramania Swamy, you may take it up with the election commission. I heard you. I know your subject. I also said
why don't you have to take it up with the election commission? No. You are the first one who spoke about it. You spoke first. 2 minutes enough for everybody. No. Digvijay ji. No. No, please. Sit down. Digvijay, no. Don't disturb. Now, see, honorable members, this is an issue to be taken up with the election commission. It is for the election commission to examine whether the EVM is functioning properly or not. Not for the chair. Chair cannot do anything in that. Mohammed Ali Khan. One second. No, I have only to give a, please. No, please. No, I have only to inform you that this is an issue to be taken up with the election commission, not with the chair, not with the, election commission. What are you doing? House adjourned up to 11:30.